اسے سگریٹ پر سگریٹ سلگاتے نہ جانے کتنی ہی دیر ہو چکی تھی جب کمرے میں ذرا سی روشنی ہوئی، شاید دروازہ کھلنے کی وجہ سے، کیونکہ اندھیرے میں تو صرف اس کی زندگی ڈوبی تھی۔ اس نے خود کو اپنے آپ کو اندھیرے کی نظر کر دیا تھا۔ اسے لگا شاید اس کا ملازم ہوگا، اس لیے ویسے ہی بیٹھا رہا۔ جب کچھ دیر میں اس کے بالوں میں کسی کے نرم ملائم ہاتھ کا لمس اس نے محسوس کیا تو اپنے پیچھے کھڑی اپنی دادو کو دیکھ کر اس نے فوراً سگریٹ بجھایا۔ اتنی جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، میں دیکھ چکی ہوں۔ دادو کے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا جسے محسوس کر کے وہ شرمندہ سا ہوا تھا۔ آپ یہاں مجھے بلا لیا ہوتا، آئیں باہر چلتے ہیں۔ ارتضیٰ نے دادو کو بیٹھنے کی جگہ دی، لیکن کمرے میں دھواں ہونے کی وجہ سے ایک بار پھر سے شرمندگی نے آن گھیرا، اس لیے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتا وہ انہیں کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ ارتضیٰ، تمہیں میری ذرا فکر نہیں رہی؟ صبح اٹھتے ہی تیار ہوتے ہو، بیگ اٹھاتے ہو اور آفس چلے جاتے ہو، رات میرے سونے کے بعد آتے ہو۔ ایسا کب تک چلے گا؟ بس اب بہت ہو گیا، تمہارا باپ بھی تمہاری روٹین سے بہت تنگ آ چکا ہے۔ اگر وہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں تنہائی میں ہی مر جاتی۔ وہ اپنے دل کا حال سنانے لگی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں دادو؟ اپنے عزیز رشتے کو خود سے دور ہونے کی بات کرتے دیکھ ارتضیٰ حیدر تڑپ اٹھا تھا۔ اور میں کیا کہوں ارتضیٰ، تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ قسمت کا لکھا تھا، اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں، یا تمہارے باپ کی۔ تم ہمیں کیوں خود سے محروم کر رہے ہو؟ کیا اب تمہاری نظروں میں ان رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی؟ باہر نکلو اس اندھیرے سے ارتضیٰ، میں اب نہیں کہوں گی تمہیں شادی کا، کبھی نہیں کہوں گی۔ دادو نے آنکھ سے آنسو صاف کیے۔ دادو پلیز اس طرح سے نہ روئے، آپ کے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں اور تمہاری زندگی سے بیزاری مجھے تکلیف دے رہی ہے ارتضیٰ۔ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں، میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ مجھے بھوک لگی ہے دادو۔ اس سے پہلے کہ دادو شادی کا ٹاپک ایک بار پھر سے شروع کرتی، ارتضیٰ فوراً بول اٹھا، ارے اس سب میں تو میں بھول ہی گئی کہ آج میں نے تمہاری پسند کا حلوہ بنایا ہے، سوچا دونوں دادی پوتا مل کر کھائیں گے۔ دادو اپنے آنسو صاف کیے مسکراتے ہوئے بولی، تمہارے باپ کو پتہ نہ چلے، ورنہ پھر کھائے گا اور پھر شوگر ہائی ہو جائے گی اس کی۔ اس بڑھاپے میں بھی بالکل بچوں جیسی حرکتیں کرتا ہے تمہارا باپ۔ دادو احسن صاحب کو کوستی کچن میں چلی گئیں، جبکہ دادی کی پریشانی کو سوچتے ہوئے ارتضیٰ ایک بار پھر سے اپنے ماضی میں جانے لگا۔ ٹھیک ہی تو کہتی تھی دادی، کتنا خوش رہتا تھا وہ، ابھی 4 سال پہلے اس کی زندگی کتنی حسین تھی، اس کی زندگی میں اس کی پسند کی ہر چیز شامل تھی۔ وہ ضدی انسان اپنی ہر بات منوانے کا فن رکھتا تھا، چاہے دادو ہو یا بابا، پھر چاہے وہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس گھر میں ہمیشہ سے صرف ارتضیٰ حیدر کی چلتی آئی تھی۔ اس کی ضد کے آگے اس کے گھر کا ہر فرد بے بس تھا، لیکن وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی اور ارتضیٰ حیدر اپنی ذات سے ہی ناراض ہو گیا۔ ترکی کے شہر ازمیر میں اس وقت شوٹنگ جاری تھی۔ اس کا فون مسلسل بج رہا تھا جسے وہ اگنور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ ٹینشن بھی تھی کہ کہیں روشنی کا فون نہ ہو، کیونکہ اگر اس وقت اس کے فون پر روشنی کا فون آ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ آج اس کی جان نہیں بچنے والی۔ وہ یا تو اس کا سر کسی دیوار میں دے مارے گی یا اسے کسی خونخوار جانور کے آگے پھینک دے گی۔ تنزیل کی سوچ میں اب یہ ضرورت سے زیادہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس کی معصوم سی روشنی اتنی بھی ظالم نہیں تھی۔ آخر اپنا سارا کام لپیٹ کر وہ فون کی طرف آیا۔ اندازے کے مطابق اس کے موبائل پر اس کی مس بیوٹی کی 13 مسڈ کالز آ چکی تھی۔ اب اس کا خدا ہی حافظ تھا، اس نے کال بیک کی جسے بڑی خوبصورتی سے اگنور کر دیا گیا، اور اس کے بعد تنزیل نے کالز کا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ آخر تنگ آ کر 23ویں کال پر روشنی نے فون اٹھانے کا احسان کر ہی دیا۔ کون بات کر رہا ہے؟ بار بار کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو مجھے؟ اگر میں فون نہیں اٹھا رہی تو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ کو نہیں جانتی؟ روشنی اسے پہچاننے سے انکار کر چکی تھی، جس پر اس کے ہونٹوں کو مسکان چھو کر گزری۔ سوری، میں بزی تھا۔ تنزیل نے اسے کچھ بولنے کا موقع نہیں دیا۔ 1 منٹ، کون ہیں آپ؟ کیا میں آپ کو جانتی ہوں یا میں نے آپ سے کوئی صفائی دینے کو بولا؟ میں آپ کو جانتی ہی نہیں، آپ مجھے سوری کیوں بول رہے ہیں؟ میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں۔ تمہارا عاشق۔ اس کے لہجے میں ناراضگی محسوس کر کے وہ شوخ انداز میں بولا تھا، جس پر ہمیشہ کی طرح روشنی کی بولتی بند ہوئی، اور ایک بھی منٹ ضائع کیے بغیر اس نے کال کاٹ دی۔ اس کی اس حرکت پر تنزیل قہقہہ لگا کر ہنسا۔ تنزیل ڈارلنگ، شوٹ ریڈی ہے۔ اس کی فلم کی ہیروئن ایک ادا سے چلتی اس کے قریب آئی اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، تمہیں کتنی بار کہا ہے
मुझे इस तरह के बेहुदा नामों से मत बुलाया करो। उसका हाथ झटक कर वो सर्द मोहरी से कहता अपनी फिल्म की तरफ मुतवज्जो हुआ। तंजील अहमद तुर्की की फिल्मों का बहुत बड़ा डायरेक्टर था। एक दुनिया उसे जानती थी। बहुत ही कम उम्र में उसका फिल्मों में बड़ा नाम था। एक से एक हसीन लड़की उसके साथ कुछ वक्त गुजारने को अपनी खुशकिस्मती समझती थी। लेकिन तंजील की जिंदगी में सिर्फ एक लड़की थी। तंजील की जिंदगी एक लड़की के ही आगे पीछे घूमती थी। वो पिछले 4 साल से उसे शादी की ऑफर कर रहा था। उसकी बस एक हाँ का मुंतजर था। लेकिन उसका बस इतना ही कहना था कि उसने तंजील को कभी इस निगाह से नहीं देखा। वो उसके बारे में ऐसा नहीं सोचती। वो उसे सिर्फ अपना दोस्त समझती है। तंजील जानता था कि वो ये सब कुछ क्यों कह रही है। 4 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसको भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करना रोशनी जैसी लड़की के लिए तकरीबन नामुमकिन था। एक मर्द अपनी पुरानी मोहब्बत को भुलाकर कितनी आसानी से नई जिंदगी शुरू कर देता है। लेकिन एक औरत हमेशा अपनी पहली मोहब्बत के जेरे असर ही रहती है। रोशनी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो आज भी उस शख्स को भुला नहीं पाई थी और ये बात तंजील अच्छे से जानता था। वो अभी अभी मीटिंग से फारिग हुआ था। अब वो अपने ऑफिस में जा रहा था कि उसकी नज़र वेटिंग एरिया में बैठी उस औरत पर पड़ी। गुस्से से उसके माथे की रगें उभरी थीं। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में कदम रखने की? वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। बेटा, मैं बस एक बार उसे मिलने आई हूँ। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। खामोश। एक लफ्ज़ और नहीं। बिल्कुल भी नहीं। निकल जाइए यहाँ से, इससे पहले कि बाबा आपको यहाँ देख लें। मुझे तो इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी बची खुची ज़िंदगी जो है ना, वो बर्बाद हो जाएगी। बेटा, एक बार तुम अपने बाबा को समझाने की कोशिश करो। वो मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैं तुम्हारी सगी माँ ना सही, लेकिन माँ तो हूँ। खुदा के लिए मुझे समझने की कोशिश करो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो तुम्हारे बाबा भी मुझे माफ़ कर देंगे। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। इस उम्र में मैं तलाक लेकर कहाँ जाऊँगी? प्लीज़ मेरी मदद करो। इस दुनिया में मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। प्लीज़ सिर्फ तुम ही अपने बाबा को समझा सकते हो। मेरी मदद करो। मुझसे गलती हुई है, मानती हूँ मैं। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। बस एक बार। अगर तुम कहोगे तो मैं रुशाने से भी माफ़ी मांग लूँगी। प्लीज़ इर्तज़ा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखें आंटी, प्लीज़ यहाँ से चली जाएं। मैं नहीं चाहता कि ऑफिस में किसी भी किस्म का कोई तमाशा हो, और ये आपका और बाबा का पर्सनल मैटर है। इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। और जहाँ तक माफ़ी की बात है तो मैं कौन होता हूँ किसी को माफ़ ना करने वाला? मैं तो खुद गुनाहगार बंदा हूँ। मैं तो खुद दिन रात लड़ता रहता हूँ अपने आप से, उसकी एक माफ़ी के लिए। मैं अपने आप की मदद नहीं कर सकता, आपकी क्या करूँ? प्लीज़ चली जाएं यहाँ से। इस औरत से इर्तज़ा को कभी भी कोई मोहब्बत या लगाव नहीं रहा था। ना तो वो उसका बेटा था और ना ही वो उसकी सगी माँ। लेकिन लेकिन ज़िंदगी के इस खेल में उस औरत ने उसे हराने में सबसे अहम किरदार अदा किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में आने की? क्यों आई हो? अब कुछ रह गया है बर्बाद करने को जो? एहसन साहब गुस्से से धाड़ते हुए वहाँ आए थे। एहसन, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें। खुदा के लिए मुझसे गलती हो गई। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ आपके। रुखसाना बेगम उनके पैरों में आ गिरी। लेकिन एहसन साहब को उन पर कोई तरस नहीं आया। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल कर दूँ तुम्हारे बारे में। तुम हमारी ज़िंदगी में जो जहर घोलना चाहती थी ना, वो घोल चुकी हो। अब अपनी इन जहरीली सोचों को लेकर जाओ यहाँ से। एहसन साहब गुस्से से धाड़े। एहसन, खुदा के लिए मेरी बात को समझने की कोशिश करें। गार्ड, इस औरत को अंदर किसने आने दिया? निकालो इसे यहाँ से अभी इसी वक्त। गार्ड्स, कहाँ मर गए हो सबके सब? निकालो इस औरत को यहाँ से। एहसन साहब ने गुस्से से बोलते अपना सर पकड़ लिया था। बाबा, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ है आपको? इर्तज़ा परेशानी से उनके करीब आया। इस औरत को निकालो यहाँ से इर्तज़ा, वरना मैं इसे जान से मार दूंगा। निकालो इसे यहाँ से। मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी इसने। निकालो इसे यहाँ से, वरना मैं इसे ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। वो चिल्ला रहे थे। खुदा के लिए आप चली जाएं यहाँ से। क्या मेरे बाबा की जान लेना चाहती हैं आप? जब इर्तज़ा से कुछ ना बन पड़ा तो वो रुखसाना बेगम पर धाड़ा था, जबकि गार्ड्स उनके करीब आ चुके थे। इससे पहले कि वो रुखसाना बेगम को धक्के मारकर वहाँ से निकालते, रुखसाना बेगम अपने मुंह पर दुपट्टा रखे रोती सिसकती वहाँ से निकल गई थी। रोशनी कहाँ है अंकल? मैं कब से उसे फ़ोन कर रहा हूँ, उठा ही नहीं रही। प्लीज़ अंकल, उसे कहें कि मुझे माफ़ कर दे। गलती हो गई मुझसे, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज़ उससे कहें कि मुझे माफ़ कर दे और मेरा फ़ोन उठाए।
तंजील इब्राहिम साहब के फ़ोन उठाते ही शुरू हो गया था, जिस पर इब्राहिम साहब मुस्कुरा दिए। इतना बड़ा डायरेक्टर और एक आम लड़की से बात करने के लिए इतने पापड़ बेल रहा है? इब्राहिम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। ओहो इब्राहिम अंकल, मैं आपको क्या बताऊं, वो आपकी लाडली मुझसे नाराज़ हो गई है, इसलिए मुझसे बात भी नहीं कर रही। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि मेरी फिल्म की शूटिंग चल रही थी कि उसकी बहुत सारी कॉल्स आईं जिन्हें मैं पिक नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने उसे फ़ोन किया और फ़ोन पर मेरी कोई बात उसे बुरी लग गई। बस उसके बाद से वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए जनाब, आपको बाबा और अपनी बचपन की दोस्ती की कसम है, तंजील ने शरारत से कहा। बरखुरदार, अपनी और रोशनी की दोस्ती बचाने के लिए मुझे मेरी और मेरे बचपन के दोस्त की कसम दे रहे हो? अंकल आप भी तो मेरे दोस्त हैं, सिर्फ बाबा के दोस्त थोड़ी हैं। अब सिर्फ मस्का लगाने से ही काम बन सकता था, वरना ये टेढ़ी बेटी और टेढ़ा बाप न जाने उसकी मदद करें या ना करें। हाँ बेटा, मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, बस आ गया मैं उसके कमरे में, रुको बात करवाता हूँ। इब्राहिम साहब ने रोशनी के बेडरूम का दरवाज़ा तो वो कोई किताब पढ़ रही थी, जबकि पास ही फ़ोन बंद पड़ा था। बेटा आपको आपका दोस्त न जाने कब से फ़ोन कर रहा है और आप हैं कि किताब में इस हद तक गुम है कि उसका फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रही। इब्राहिम साहब ने कमरा नॉक करते हुए कहा। सॉरी बाबा, मैंने ध्यान नहीं दिया। रोशनी को अंदाज़ा था कि जो मोबाइल उनके कान से लगा है उस पर कॉल उसके स्टूपिड दोस्त तंजील की ही होगी। मैं उसे अभी फ़ोन करती हूँ। नहीं बेटा, आप यहीं से बात कर लें, वो कब से आपको फ़ोन कर रहा है। वो का मतलब उसका इकलौता दोस्त तंजील ही था। उसने बाबा के हाथ से फ़ोन लिया तो बाबा कमरे से बाहर जाने लगे। बाबा के कमरे से बाहर जाते ही उसने फ़ोन कान से लगाया। सॉरी तंजील, वो दरअसल मेरा फ़ोन बंद हो गया था, इसलिए मैं तुम्हारा फ़ोन रिसीव नहीं कर पाई। सॉरी, रोशनी ने माजरत की। कोई बात नहीं रोशनी, मैं जानता हूँ तुमने फ़ोन जानबूझकर नहीं उठाया होगा। मैं समझ सकता हूँ मेरी बात तुम्हें बुरी लगी है। कौन सी बात? मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगी। तुम कौन सी बात की बात कर रहे हो? रोशनी ने इग्नोर किया उसे। छोड़ो, आज मिल रही हो मुझसे? तंजील ने टॉपिक चेंज किया। इतने मसरूफ डायरेक्टर को एक आम सी लड़की से मुलाकात करने का वक्त कहाँ से मिला? रोशनी ने चोट करते हुए कहा। मैं तुम्हारे लिए कभी मसरूफ नहीं हो सकता रोशनी, ये बात तुम अच्छे से जानती हो। मुझसे मिलो, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ मैं। तंजील का लहजा अब बहुत सीरियस था। ठीक है, कहाँ हूँ मैं? उस जगह जहाँ कोई मुझे पहचाने ना। मशहूर होना भी एक मुसीबत है। रोशनी की मासूम सी मुस्कुराहट उसके लिए किसी मीठे हवा के झोंके से कम नहीं थी, और यही बात आज वो उस पर वाजे कर देना चाहता था। आज फिर वो अपने कमरे में अंधेरा किए बैठा था। जब भी वो उदासी उसकी ज़ात पर छाती वो ऐसा ही करता था। उसे उसके सिगरेट पीने से नफरत थी, लेकिन उसने ये आदत छोड़ने की बहुत कोशिश की। लेकिन आदतें आसानी से कहाँ जाती हैं, ये इंसान को अपने आगे बेबस कर देती हैं। वह हमेशा कहती थी या तो सिगरेट छोड़ दो या फिर मुझे। उससे इर्तज़ा हैदर की ज़िंदगी में बदला तो कुछ नहीं था, बस उसके सामने सिगरेट पीना छोड़ दिया था उसने, और उसके जाने के बाद एक बार फिर से सिगरेट का सहारा लिया। आज फिर उसकी याद टूट कर आने लगी। आज बाहर बहुत बारिश हो रही थी। उसको बारिश बहुत पसंद थी, और उसे बारिश में वो, उसकी मोहब्बत, उसका इश्क, सब का सब कुछ, जिसे याद करते वो अक्सर सिसक उठता था। मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए मुझे एक बार माफ़ कर दो। मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। मैं मर रहा हूँ, मैं पल पल मर रहा हूँ तुम्हारी जुदाई में। तुम्हारी जुदाई मुझे मार डालेगी। मैं जानता हूँ मेरी गलती काबिल माफ़ी नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम्हारी जगह किसी और को दे दी। बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे। मैं मानता हूँ मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है। तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती, जानता हूँ मैं। तुम मत करो मुझे माफ़, बस मेरे पास लौट आओ, मेरे पास रहो, मुझसे दूर मत जाओ। तुम जो कहोगी मैं करूँगा। मैं जानता हूँ मैं गलत था। या अल्लाह, उसे मेरी ज़िंदगी में वापस भेज दे। मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। मैं मर रहा हूँ उसकी जुदाई में, पल पल। उसकी जुदाई मेरी जान ले रही है। आंसुओं से तर चेहरा वो ज़मीन पर लिए बैठा बेतहाशा रो रहा था। लोग कहते हैं कि मर्द रोता नहीं, वो मजबूत होता है। इर्तज़ा भी मर्द था, दुनिया के सामने एक मजबूत इंसान, जो हर रात की तन्हाई में एक औरत के लिए तड़पता था, जिसकी जुदाई ने उसे पल पल अजियत दी थी। 4 साल से हर रात वो रोया, हर रात वो तड़पा, लेकिन उसके आंसू साफ करने, उसकी तड़प मिटाने, उसकी रोशाने इर्तज़ा हैदर लौट कर वापस नहीं आई। उसे अंधेरे से वहशत नहीं होती थी, क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी में उसकी रोशनी नहीं थी, उसकी शानी नहीं थी।
वो बाबा को उनका फ़ोन वापस करने आई थी, जब बाबा ने उसका हाथ थाम कर उसे अपने पास सोफ़े पर बिठा लिया और मुस्कुराकर उनके करीब वो बैठ भी गई। मुझे आपसे कुछ बात करनी है बेटा, बाबा ने कहा। जी बाबा बोलें, क्या बात करनी है आपने? रोशनी ने मुस्कुरा कर पूछा। बेटा आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सोचा है आगे का? सवाल बिल्कुल आसान था, लेकिन उसका जवाब इतना आसान नहीं था। ये शानी और बाबा दोनों जानते थे। मैं समझी नहीं बाबा, आप कहना क्या चाहते हैं? रोशनी ने अनजान बनने की कोशिश की। बेटा मैं आपकी शादी के बारे में बात कर रहा हूँ। आप जानती हैं तंजील क्या चाहता है और आज वो आपको किस मकसद के लिए मिलने बुला रहा है। रोशनी ने बाबा के चेहरे की तरफ देखा। क्या तंजील ने आपको कहा है कि वो इस मकसद के लिए मुझे बुला रहा है? रोशनी ने पूछा। देखो रोशनी बेटा, वो आपके बारे में सब कुछ जानता है। आपके तल्ख माजी की तल्ख यादें, तल्ख बातें, वो किसी भी चीज़ से अनजान नहीं है। देखो रोशनी बेटा, वो आपके बारे में सब कुछ जानते बूझते इसके बावजूद भी वो आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता है, मोहब्बत करता है वो आपसे। मेरे ख़्याल में अब आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। बाबा की बातों से रोशनी की आंखों से आंसू निकलने लगे। देखो बेटा, सारी ज़िंदगी रोते धोते नहीं कटेगी। हर किसी को आगे बढ़ने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है। आपने अपनी मर्ज़ी से वो फ़ैसला किया जो गलत साबित हुआ। अब मैं बाप होने के नाते आपकी ज़िंदगी का एक फ़ैसला करना चाहता हूँ। कैसा फ़ैसला बाबा? रोशनी को अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती महसूस हुई। मैं आपकी और तंजील की शादी कराना चाहता हूँ। आप जानते हैं ये नामुमकिन है बाबा। इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है मेरी बच्ची, बस इंसान में हासिल करने की हिम्मत होनी चाहिए। मुझे यकीन है मेरी बेटी अपनी आज़ादी हासिल करने में कामयाब होगी। बहुत कोशिश के बावजूद भी वो तंजील की बुलाई हुई जगह पर ना जा सकी। तंजील सारी रात उसका इंतज़ार करता रहा। वो 4 साल से उसका इंतज़ार ही तो कर रहा था। वो हर बार उसे तकलीफ़ और दर्द से खींचकर खुशी के रास्ते पर लाता और वो फिर से उसी रास्ते पर चली जाती। तंजील को लगता था कि रोशनी के साथ जो भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं वो भी कसूरवार है। रोशनी के एग्ज़ाम्स हो रहे थे। उसे यकीन था कि वो यूनिवर्सिटी में ही होगी, इसलिए उसके घर जाने के बजाय वो यूनिवर्सिटी चला आया। उसे यूनिवर्सिटी के बाहर देखकर वो उसे इग्नोर नहीं कर सकी। तुम यहाँ? तुम कल क्यों नहीं आई? नहीं पूछूंगा मैं ये तुमसे। जानता हूँ तुम्हारे सर में दर्द था या तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई होगी या शायद घर पर कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे घर के नौकर तो अक्सर घास चरने के लिए चले जाते हैं ना, राइट? उसकी बात पर रोशनी हंस दी। चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। लेकिन कहाँ? कोई सवाल नहीं, चलना है। जितना कहा है उतना करो। कल जो काम अधूरा रह गया था वो पूरा करना है। उसके साथ चलते हुए एक पल को उसके पैर थम गए। देखो रोशनी, मैं सारी रात नहीं सोया और तुमने अपनी मनमानी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें उठा कर अब ले जाऊंगा। उसकी धमकी हमेशा की तरह काफ़ी पावरफुल थी, इसलिए रोशनी ने उसके साथ जाने में ही आफियत समझी। वो उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर गया था। यहाँ भी जो इंतज़ामात हुए थे वो कल के थे, क्योंकि ज़मीन पर पड़े हुए फूल मुरझा चुके थे। यहाँ तक कि टेबल पर जो फूल रखे थे वो भी बासी हालत में थे। आई एम सॉरी, मुझे तुम पर इतना गुस्सा था कि ये सब कुछ रिन्यू भी नहीं कर पाया। शर्मिंदा होने का ये अंदाज कुछ नया सा था। अपने गुस्से का इजहार भी कर रहा था और उसे उसकी गलती भी बता रहा था, जबकि वो अपने प्रपोजल पर कुछ शर्मिंदा था। खैर वो मैं जानता हूँ कि तुम जानती हो कि मैं यहाँ तुम्हें क्यों लेकर आया हूँ, इसलिए बेकार में टाइम वेस्ट नहीं करते। देखो रोशनी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जानता हूँ। ये भी जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। रोशनी, मुझे पता है पहली मोहब्बत को भुलाकर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक जगह पर रुक जाना ये भी तो कहीं की अक्लमंदी नहीं ना। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, वैसे ही जैसे पिछले 4 साल से कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो ये फूल मुरझा चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यही वाला फूल दूंगा, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। मैंने तुम्हारी गलती नज़रअंदाज की ताकि तुम मेरी गलती को नज़रअंदाज करो। इसी का नाम ज़िंदगी है रोशनी। हमें एक दूसरे को समझना होगा। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। और मुझे पता है जब तक तुम अकेली रहोगी तब तक तुम्हारे खुश रहने के कोई चांसेस नहीं है। मैं तुम्हें एक जगह रुके हुए नहीं देख सकता। ये कहते हुए वो ज़मीन पर बैठा और उसका हाथ अपने हाथ में थामा। जेब से एक इंतहाई नाजुक सी अंगूठी निकाली और उसके हाथ में पहनाने लगा। इजाज़त? उसका सवाल उसे गहरी सोचों से निकाल कर बाहर लाया था। ठीक ही तो कह रहा था वो।
ایک جگہ رک کر وہ 4 سال سے اپنی زندگی برباد کر رہی تھی۔ یہ ٹھیک تھا کہ وہ اب کوئی دبو سی لڑکی نہیں تھی، اس میں کمال کا کانفیڈنس تھا۔ اب وہ کسی سے بھی مقابلہ کرتے ہوئے ڈرتی نہیں تھی، وہ اپنے حق کے لیے لڑنا جان چکی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ ایک ہی جگہ کھڑی تھی۔ کیوں؟ کیا اسے آج بھی اسی شخص کا انتظار تھا جس شخص نے اس کی جگہ کسی اور کو دے دی؟ کیا آج بھی وہ اس شخص سے اتنی ہی محبت کرتی ہے؟ وہ محبت جو اس کی محبت رون کر چلا گیا تھا؟ نہیں، وہ شخص اس کے قابل ہی نہیں تھا، نہیں تھا وہ اس کے قابل۔ یہ شخص تھا اس کی محبت کے قابل، جو زمین پر بیٹھا اس سے اسی کو مانگ رہا تھا۔ ہاں، اس نے ایک لفظ میں اسے زندگی کی نوید سنا دی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ تنزیل نے بے یقینی سے کہا، جس پر وہ مسکرا دی۔ ہاں، وہ پھر سے بولی تو بے یقینی سے جو اسے دیکھ رہا تھا، پھر جیسے سکتے سے باہر نکلا۔ انگوٹھی پہنا کر وہ کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر رکا، لیکن پھر اسے اپنی بے اختیاری پر خود ہی شرمندگی ہوئی تو وہ پیچھے ہو گیا۔ میں بابا سے بات کرنا چاہتی ہوں اس بارے میں، روشنی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ فوراً وہاں سے نکل گیا۔ بابا، اس نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا ہے اور میں نے ہاں کر دی بابا۔ بابا کے فون اٹھاتے ہی وہ بولی، میں تمہارا شکر گزار ہوں بیٹا، مجھے آگے بڑھنا ہے بابا۔ اسے بھلا کر پلیز میرا ٹکٹ کنفرم کرا دیں، مجھے پاکستان جانا ہوگا۔ نہیں، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میں سب کچھ یہیں سے ٹھیک کروا دوں گا، تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ نہیں بابا، میں پاکستان جاؤں گی، میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے طلاق مانگنا چاہتی ہوں، اسے بتانا چاہتی ہوں کہ میں اسے بھلا کر آگے بڑھ رہی ہوں۔ بابا، میں اسے بتانا چاہتی ہوں کہ اگر وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے تو رکی میں بھی نہیں۔ بابا، آپ پاکستان کے لیے میرا ٹکٹ کنفرم کروا دیں پلیز، میں زیادہ دن کے لیے نہیں رہوں گی، طلاق لے کر فوراً واپس آ جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا، جبکہ اس کے بابا جانتے تھے کہ یہ ضدی لڑکی اب کسی کی نہیں سننے والی، لیکن وہ اب اس سے بات ماننے سے انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اب وہ اس کی بات ماننے سے انکار بھی تو نہیں کر سکتے تھے، وہ اس کا ٹکٹ کنفرم کروا چکے تھے۔ 2 دن بعد وہ جا رہی تھی پاکستان۔